और कल हमने बहुत सारी बात करी थी, उसमें कई सारी बातों में एक बात ये भी थी, संतोष दारेकर जी बहुत बहुत धन्यवाद दिया, उसमें एक बात वक्फ बोर्ड को लेकर भी थी। तो वक्फ बोर्ड को लेकर फिर सत्ता गरमा रही है, फिर कुछ हो रहा है। और आइए देखें, पहले इसको देख लें, फिर अपन आराम से इसको एनालाइज करेंगे। Against the Waqf Board. Today, let's get your story about acres of public and government properties takeover in Jammu without the government even being aware of it. हम तो दिल्ली सोच रहे थे, जम्मू भी चला गया साहब, और आप सोच के हैरान हो जाएंगे, कोई 1000-2000 स्क्वायर फीट नहीं। जरा सुनिए। People of Poonch contacted with me. We filed a case in J&K High Court. I am their advocate. We started investigating the case and we found out that in August 1985, in a very secret manner, clandestinely, a government order had been issued through which nearly half of the Poonch city had been handed over to the Waqf team. Fraud was enacted, which is said to be under approximately over 500 crore rupees. 500 करोड़ का वक्फ घोटाला हो गया। Poonch was literally gifted away, the Waqf, on a platter in the mid-1980s. Under the watch of former J&K Chief Minister G.M. Shah, over 29 acres of government land worth at least 468 crore rupees was transferred in the name of Waqf Islamia. The government land that Waqf is laying claim to includes 22 acres at the airfield ground in Poonch, priced at 360 crore rupees. The massive parade ground worth at least 47 crore rupees. The grounds of the government degree college, the site where the girls' middle school is built, even the compound that houses the Deputy Commissioner's office and residence. These are among the 11 sites in Poonch where land was transferred to benefit one religious group. Properties that Waqf is claiming are marked across Poonch. It includes the government media complex. The premises of the old police station, which have been converted into government quarters, are claimed by the Waqf. So is this area adjoining the Eidgah on the PWD road. In 2012, the fraud was first called out by the Deputy Commissioner of Poonch. He flagged off his concerns in writing to the Jammu Divisional Commissioner. The higher authorities had been sounded that the lands transferred to Waqf in 1985 had been wrongly. तो साहब कश्मीर में भी यही हाल हो गया। हज़ारों एकड़ की ज़मीन जो है वो वक्फ के नाम पे चढ़ा दी गई। 500 करोड़ का घोटाला प्राइमरीली बताया जा रहा है, अभी नहीं मालूम कितने का, अभी तो अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि 500 करोड़ के आसपास का, हो सकता है 5000 करोड़ का। तो ये चीज़ें हैं, ये आपके सामने हो रहा है। हम तो यहीं के दिल्ली के लिए रो रहे थे, यहाँ तो गजब हो गया, ऐसा अंट चल रहा है। Now is the right time and reason need to block finance, hence boycott halal should start from UK, replace in India in full scale. विनोद जी बिल्कुल। तो कुल मिलाकर ये वक्फ की कहानी चल रही है, जहाँ देखो वहाँ वक्फ की यही कहानी है। अब वक्फ बोर्ड को लेकर कल हमने आवाज़ उठाई थी, आप सब ने देखा, आप सब ने पसंद किया, और आप सब ने इसको हाथों हाथ दूसरों को भी भेजा। तब क्या हुआ, यहाँ अगर अपन कुछ बात करते हैं तो उसका कुछ परिणाम होता है क्या? तो कोई परिणाम हुआ क्या? आइए देखें। यूपी योगी सरकार का बड़ा फैसला, मदरसों के बाद अब वक्फ बोर्ड की संपत्तियों की भी होगी जांच। वक्फ बोर्ड की संपत्तियों की भी जांच होगी। तारीख ध्यान से देखिएगा, 21 सितंबर 12:16 दोपहर के। ठीक है, क्लियर है? कल बात करी, आज एक्शन सामने आपके। अगेन कांग्रेस करप्शन सरफेस। हाँ मोहन जी, सब जगह कांग्रेस मिलेगा। ठीक है, मदरसों के बाद वक्फ संपत्ति की भी होगी जांच। योगी सरकार ने रद्द किया 33 साल पुराना आदेश। 21 सितंबर 9:29। ठीक, मदरसों के बाद अब वक्फ संपत्तियों की भी होगी जांच। योगी सरकार ने रद्द किया 1989 का शासनादेश। क्लियर है? मजा आ रहा? क्या जांच होगी? कौन कौन सी संपत्ति है, कहां कहां संपत्ति है, कैसी कैसी संपत्ति है, किसने दी थी, कहां से आई थी। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो बता दिया करो, पता तो चले कि आपको आनंद आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो होना चाहिए ऐसा कि नहीं होना चाहिए? ये जो संपत्ति जो है इनकी जांच होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? हम कहते हैं सिर्फ इनकी जांच नहीं होनी चाहिए, हर एक चीज की जांच होनी चाहिए। इसका फुल ऑडिट होना चाहिए, कंप्लीट ऑडिट होना चाहिए। ठीक है ना? खैर तो यह है साहब, जब आप यहां कोई आवाज उठाते हो, जब आप कोई बात करते हो। कल हमने आपको एक बात बोली थी, ये मैटर हमारे पास में 1 साल पहले करीब दिया गया था, लेकिन हमने इस मुद्दे को नहीं उठाया। हमने इस मुद्दे को समय के अनुसार उठाया। तो जब समय होता तब उठाया जाता है। अब बहुत सारे लोग पूछेंगे
अब क्या करना चाहिए? बहुत सारे लोग बोलेंगे, हमने कल भी कहा कि हमने इशारों में समझा दिया। संदीप कुमार जी धन्यवाद, हमने इशारों में समझा दिया कि क्या होना चाहिए। कुछ लोगों के मन में अभी भी सवाल होगा कि क्या वक्फ बोर्ड को ख़त्म कर देना चाहिए, डिसॉल्व कर देना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। वक्फ बोर्ड को क्यों डिसॉल्व करेंगे? वक्फ बोर्ड को कतई डिसॉल्व नहीं करना चाहिए। वक्फ बोर्ड बना रहना चाहिए, जैसा ऐसे ही बना रहना चाहिए। जो होना वो हो जाएगा, आपको उसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? आप टेंशन मत लीजिए, आपको जो टेंशन लेनी है आप उतनी टेंशन लीजिए। पीछे 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 खड़े हो जाओ, जाके पीछे लाइन लगा के खड़े हो जाओ, सपोर्ट में खड़े रहो बस, ठीक है ना? आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। कुछ लोगों ने पूछा था एक समय पर कॉलेजियम सिस्टम खत्म होना चाहिए क्या? हमने कहा नहीं। तब उस समय लोगों को बड़ा अजीब लगता, कॉलेजियम सिस्टम के लिए मना कर रहे हैं। आज मैं कह रहा हूँ वक्फ बोर्ड खत्म नहीं होना चाहिए। वर्तमान स्थिति, आज की जो स्थिति है, हो सकता है हम उस चीज़ में फेल हो जाए, तो हो सकता है कल हम बोलें कि वक्फ खत्म होना चाहिए, लेकिन फिलहाल जो वर्तमान स्थिति है और फिलहाल जो वर्तमान जो शय और मात का जो बिसात बिछी हुई है शतरंज की, उसके अनुसार ये कतई अच्छा नहीं होगा कि वक्फ बोर्ड को ख़त्म किया जाए, ठीक है? तो साहब ये रही आपके सामने न्यूज़, एक के बाद एक वक्फ की संपत्तियों की जांच होगी। मदरसों के बाद 33 साल बाद 1989 का शासनादेश रद्द, ठीक है? मजा आ रहा है, आनंद आ रहा है, ठीक है? कितने सारे चैनल देखते हो आप लोग। दीपक वर्मा जी धन्यवाद। ऐसा जादू तो कहीं होता है क्या? रवि मल्होत्रा कहते हैं खत्म होना चाहिए। उसके जो प्रोविजंस हैं उसकी बात करी थी, खत्म होना चाहिए, और कहा था तो उसको आज अमेंड कर दिया हमने, नहीं खत्म होना चाहिए, ठीक है? आज की बात लिख लो, पुरानी मिटा दो, कल हो सकता है फिर इस बात को मिटाया जाए, लेकिन वर्तमान स्थिति तो यह है कि नहीं होना चाहिए, ठीक है? तो इतनी सारी चीज़ें आपके सामने हैं और आपके सामने हो रही हैं। तमाम सारे आप चैनल देखते हो, तमाम सारी न्यूज़ आप देखते हो। बहुत सारे लोग बोलते हैं, किसी ने मुझे याद है एक बार किसी का मैंने कमेंट यहाँ पढ़ा था, बोले आप करते क्या आते हो, न्यूज़ ही तो पढ़ते हो। आज जवाब मिल गया होगा, पहले भी जवाब मिला होगा, ठीक है ना? तो ये फ़र्क है सर बाकी जगहों में और हमारी जगहों में, ठीक है? रीज़न कुछ नहीं होता प्रतीक जी, यहाँ पे रीज़न नहीं देते, दो चीज़ें नहीं देते सर हम यहाँ पर, ना ट्विटर पे ना किसी भी सोशल मीडिया पर। कोई बोले सबूत, वो नहीं देते। भरोसा है तो बैठो, नहीं तो निकल लो। और रीज़न समय आने पर रीज़न दिया जाएगा, तब आपको याद दिलाया जाएगा कि तब हमने क्या कहा था आपसे, ठीक है ना? कि तब हमने ये कहा था और अब हम इसलिए ये कह रहे हैं, ठीक है? कितनी बार यहाँ पर ऐसा हो चुका है जब हमने आपको बोला कि भाई फला चीज़ जो आप सोच रहे हो ठीक उससे उल्टा बोला, और उसके बावजूद आप लोग के फेवर में वो चीज़ें हुई हैं, ठीक है ना? आई डोंट नो वाई पेपल पेमेंट डज नॉट वर्क फॉर मी फॉर योर अकाउंट, सुरजीत जी आई हैव नो आइडिया, है ना? ठीक है, तो चलो भाई, जो यहाँ बात करते हैं वो हो जाती है, एक दो दिन में हो जाती है, अगले दिन हो जाती है, कभी कहीं हो जाती है, कभी कहीं हो जाती है। आनंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यहाँ का समय वसूल हो रहा है कि नहीं हो रहा है? पैसा वसूल हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अब बस एक ही चीज़ है, थोड़ा सा प्रॉब्लम है। बहुत सारे लोग कंपेयर कर देते हैं, ऐसा वैसा फलाना ठिकाना। कंपेयर मत करो मुझे किसी से, कंपेयर मत करो इस चैनल को किसी से, ठीक है ना? क्लियर है? ठीक है, बस आनंद लीजिए और बस इतना समझ लीजिए, जो न्यूज़ आपको यहाँ मिलेगी वो कहीं नहीं मिलेगी। समय लगेगा, 2-2.5 घंटा देना पड़ेगा। वो छोटे हल्के फुल्के लोगों के लिए नहीं है, भारी लोगों के लिए चीज़ है, और लंबे समय बैठ सके उनके लिए चीज़ है। तो जैसा हमने जो चर्चा करी उसी तर्ज पर चीज़ें चल रही हैं। सरकार आपकी सुन रही है और लगातार सुन रही है। लोग बोलते हैं सरकार सुनती नहीं है, मोदी योगी घमंडी हैं, ठीक है ना? तो जो घमंडी हैं, सुनते नहीं हैं, छोटी से छोटी बात आपकी सुनी जाती है। आप कहते हो गोभी महंगी हो गई तो वो भी सस्ती होती है, थोड़ी शर्म करो यार, थोड़ी शर्म करो। आप लोगों ने जो जो आवाज़ उठाई, जो जेन्युइन आवाज़ है, जिस आवाज़ को उठाया उस आवाज़ में वो काम हुआ है। अब तो कम से कम ऐसा बोलना बंद कर दो, हैं? प्रीतेश भक्ता जी धन्यवाद, ठीक है? जो जो आवाज़ उठाई है, दूध के लिए नहीं उठाई थी, नहीं हुआ सस्ता, ठीक है? पेट्रोल के लिए कभी नहीं उठाई है हमने, ठीक है? तो ये चीज़ें हैं, क्लियर है। अब नोटिफिकेशन नहीं आ रहा तो उसमें क्या करें? तो ये वो सरकार है सर जो आपकी हर एक बात सुनती है और हर एक बात पर एक्शन लेती है, तुरंत एक्शन लेती है। आपको वक्त से प्रॉब्लम है, आपने कहा वक्त कितनी संपत्ति दबाए चला जा रहा है, वक्त पर जांच बैठ गई। बहुत सारे लोग कल से बोल रहे हैं वक्फ को ख़त्म कर देना चाहिए। ख़त्म नहीं,
ऐसे कैसे, ऐसे कैसे ख़त्म कर देंगे? तो भैया मौलाना मोदी, लोनावाला, मौलाना योगी, चलो भाई मज़े करो। जय श्री कृष्णा। अगर आपने कहा कि वक्फ बोर्ड ख़त्म नहीं होना चाहिए तो ज़रूरी भारत के लिए फ़ायदेमंद, आप बेफिक्र रहिए, बेफिक्र रहिए, ठीक है ना? क्लियर है? अपर्णा जी बेफिक्र रहिए, आपको जो यहाँ बोला जा रहा है बहुत सोच समझ के जिम्मेदारी के साथ बोला जा रहा है ना? अपन वो नहीं ना खाता ना बही और कुछ भी बोल दिया, जो हमने कहा वही सही, ऐसा नहीं। लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जिनको अभी नहीं बताया जाता है, जिनको बाद में बताया जाएगा, ठीक है? चलिए आइए और आगे बढ़ते हैं। तो ये तो हो गई वक्फ की बात। अब वक्फ की बात को लेकर कल हमने बहुत सारी खींचातानी भी करी थी, लेकिन जरा वक्फ की बात पूरी नहीं हुई अभी, सॉरी, जरा वक्फ की बात पूरी कर लें, अधूरी है अभी तो। वक्फ बोर्ड के पास कुल मिलाकर 8,54,509 संपत्तियां हैं। 8 लाख एकड़ से ज्यादा जमीन वक्फ बोर्ड के पास है। यूपी सरकार ने जो आदेश जारी किया है वो यूपी वक्फ बोर्ड की संपत्ति को लेकर है। उत्तर प्रदेश में सुन्नी वक्फ बोर्ड के पास कुल अचल संपत्ति है 2,09,477। इनमें से 1,162 संपत्तियों पर कानूनी विवाद जारी है। वहीं शिया वक्फ बोर्ड के पास अचल संपत्ति की संख्या है 15,386। इनमें से 48 मामलों में कानूनी विवाद है। सरकार का दावा है कि इन विवादों के निपटारे के लिए ही सर्वे की जरूरत है। विवादों के निपटारे के लिए सर्वे की जरूरत है, सरकार का कहना है। मुस्लिम पक्ष का क्या कहना है उसको भी सुनिएगा, बहुत मजेदार है ये। और ये सरकार का कर्तव्य है, सरकार अपने कर्तव्य का पालन कर रही है, लेकिन इसको तूल देने का, इसको हवा देने का, जो केवल मुस्लिम वोटों के लालच में लगातार तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, वो इस प्रकार की बात करते हैं। कोई मदरसे के नाम पर, फिर अब कभी वक्फ बोर्ड के नाम पर, ये सरकार काम करेगी, सरकार बैठी नहीं रहेगी ना उनकी तरह। इतना ही नहीं, वक्फ बोर्ड के पास संपत्ति तो होती है लेकिन अतिक्रमण हटाने की शक्तियां उसके पास नहीं है, और इस वजह से वक्फ बोर्ड की कई संपत्तियों पर अतिक्रमण हो चुके हैं। अब शिया और सुन्नी बोर्ड इस फैसले से खुश है। ठीक है, संपत्ति तो है, अतिक्रमण हटाने का अधिकार नहीं है वक्फ के पास किसी भी प्रकार से। बड़े समझदारी के साथ कानून बनाया, लेकिन कहते हैं ना कि क्रिमिनल कितना भी शातिर हो कुछ ना कुछ तो छोड़ ही देता है। ऐसा ही इनके साथ हुआ, बड़े शातिर तरीके से कानून बनाया, लेकिन कहीं ना कहीं तो छूट गया। अभी इस कानून के अंदर बहुत लूपहोल है सर, है ना, इसलिए अभी तो बहुत मज़ा आएगा, इसमें बहुत मज़ा आएगा। कुछ आगे समझिएगा सर, योगी इतनी गट्स लाते कहते हैं आप लोगों से, आप लोग बोलते हैं ऐसा करना तो कर देते हैं, ठीक है ना। आइए आइए आइए, स्वागत है। कि भाई सर्वे जैसे जो मदरसों के सर्वे से इसको जोड़ा जा रहा था, या गलत तरह की जो है राजनीतिक जो है लोग उसके ऊपर जो है कटाश कर रहे थे, बयानबाजी कर रहे थे, ये बिल्कुल भी जो है जो लोग हैं वो इसके अंदर कोई भी मसाला ना ढूंढे, इसके अंदर कोई मसाला नहीं है। सरकार की नीयत बहुत साफ है, बस संपत्तियों का संरक्षण। यही वजह है ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड के महासचिव और शिया धर्मगुरु यासूब अब्बास इस फैसले का स्वागत कर रहे हैं। इसके ऊपर सर्वे होना चाहिए, हम इसमें सरकार की पूरी मदद करेंगे, और सर्वे होके जो औकाफ की ज़मीनें हैं, जिन लोगों ने वक्फ किया है, जो उनका मंशा है वाकिफ हजरात का, उसके हिसाब से काम होना चाहिए। वहीं इस्लामी सेंटर के प्रवक्ता सुल्तान निजामी उम्मीद जता रहे हैं सर्वे होने पर वक्फ की संपत्ति पर किराया मिलना शुरू हो गया तो गरीब मुस्लिमों का भला होगा। सरकार अगर इस तरफ तवज्जो करे और वक्त की संपत्तियों पर जो सरकारी इमारतें हैं, सरकारी दफ्तर हैं, कम से कम मार्केट रेट का जो भी सर्कल रेट और मार्केट रेट में जो भी उसका किराया आता है, अगर वो वक्फ बोर्ड को जमा कर दिया जाए तो यकीनी तौर पर इससे मुसलमानों का बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। सर वैसे गैर कानूनी रूप से छीनी गई जमीन मिलने की उम्मीद जगी है। दरअसल वक्फ संपत्तियों को लेकर साल 2013 में ही सर्वे हो जाना चाहिए था, लेकिन हुआ नहीं। जहाँ तक मेरी जानकारी है उसी पर वो सर्वे है। तो साहब कुल मिला के सर्वे इसलिए हो रहा था कि ये मालूम चल सके कि वक्फ की जो संपत्ति कहाँ कहाँ कितनी कितनी है, किस किसने दबाई, क्या किया। वो सारी संपत्ति जो जिसने भी दबाई है उससे वापस लेकर वक्फ बोर्ड को दिया जाना चाहिए। दिया जाना चाहिए कि नहीं दिया जाना चाहिए, आप लोग बताओ। पारिकुल जी के साथ देयर आर फ्रॉड्स यूज कार सेलर हु सेल इन द नेम ऑफ इंडियन आर्मी एंड फाउंड सच सेलर मोबाइल, व्हाट शुड आई डू? FIR कराओ सर, है ना, पूछने की बात थोड़ी। इज देयर एनी रिलेशन बिटवीन डिसमिसल नकवी रिमूवल इन वक्फ डील? अंदर क्या रिलेशन है सर, उस पर मैंने दिमाग नहीं लगाया, मैंने पता नहीं किया, तो इस बारे में बता नहीं सकता मोहन जी, है ना। फिलहाल अभी जो चल रही है उस कहानी को देखें, उसमें बड़ा आनंद आएगा। तो वक्फ पे संपत्ति किसी ने कब्जा कर रखा है, वो हटाया जाना चाहिए कि नहीं हटाया जाना चाहिए? मान लो किसी हिंदू ने अपनी दुकान बना ली है, मान लो किसी मुसलमान ने बना ली है, वो हटना चाहिए कि नहीं हटना चाहिए? बिल्कुल हटना चाहिए। वक्फ की संपत्ति वक्फ को दी जानी चाहिए, पूरी एक एक इंच दी जानी चाहिए, ठीक है, क्लियर है? आप अपने विचार बदल लो, जिन्होंने नो लिखा है। आपको अभी समझ में नहीं आ रहा, अभी आएगा भी नहीं,
ठीक है, आप शांति से बैठो, बस शांति से देखते जाओ, ठीक है। अभी जो चाल चल रही है पहले उसको देख लो, हो सकता है चाल ना चले, हो सकता है घोड़ा वापस लेना पड़े, फिर कुछ और चलना पड़े, ऊँट चलना पड़े, हाथी चलना पड़े। अभी जो चल रहा है उसमें तो सब सही चल रहा है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है ना। ठीक, चलो भाई, तो वक्फ की संपत्ति का सर्वे होना चाहिए, वक्फ की संपत्ति सब वक्फ को वापस मिलनी चाहिए, और वक्फ लोग कहते खत्म कर देना चाहिए। खत्म क्यों करना चाहिए, वक्फ बना रहना चाहिए, वक्फ बिल्कुल खत्म नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। यदि आपको लाइव पसंद आया हो तो इस QR कोड को स्कैन करके अपना कंट्रीब्यूशन, अपनी फ़ीस, अपना गुरु दक्षिणा, जो भी आप समझते हो वो इसको स्कैन करके, और जब आप स्कैन करेंगे तो आप ध्यान रखिएगा नितिन एंटरप्राइजेस लिख कर आएगा आपके उसमें, है ना। जो लोग भारत के बाहर हैं वह patreon.com/नितिन शुक्ला पर और paypal.me/नितिन शुक्ला GWL पर कंट्रीब्यूट कर दें। Like, share, subscribe and click on the bell to receive a notification every time a video is uploaded. If you'd like to contribute to the channel, you can contribute to patreon.com/Sanatani, paypal.me/Sanatani